Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Last day we have started chapter number 5, which is quadratic equations and graphs. The reference of this topic is at number 20 of your CI syllabus. Today is our lesson number 27 and online lesson number 3. In this exercise, we will solve some questions of exercise 5A. In fact, question number 3 and 4. And we will solve quadratic equation by factorization. So let's begin our lesson. In the previous lesson, we have studied what is equation. We know that equation is any statement which has a sign of equality. A quadratic equation is an equation in which the highest power of the variable is 2 and there is no other term with the higher power. This is the example of a quadratic equation. In this the variable is x and this equation has 3 terms and the maximum power of the variable in a term is 2. There is no term having power higher than 2. Then we studied forms of quadratic equation. There were different forms of quadratic equation. Ax square plus bx plus c. This is the standard form of quadratic equation. Then we studied factor forms, completing square or vertex form, and then pure quadratic form of equations. You can see the all these forms in the previous lesson. Then solution of quadratic equations. What is solution or what are solutions of quadratic equation? Those values of the variable which make this equation true are called the solution of the quadratic equations. Solutions are also called roots or zeros of this equation. For quadratic equation, there are usually maximum two solutions. There may be two of same kind or of different kind. Then we studied method of solving quadratic equation. There are different methods of solving quadratic equations which are also included in your CIE syllabus. The first one was by factorization method, by completing square method, by quadratic formula, by graph, by using the square root. All these we will study in your syllabus, but in this chapter we will use factorization method to solve the quadratic equation. Then we studied zero product property. What is zero product property? We have studied, and in the next slide we will revise this property. So this is what we have studied in the previous lesson. Now let's start today's lesson. Solving quadratic equation by factorization, we use zero product property. The property is that if two factors p and q are such that p multiplied by q is equal to 0, when when the expressions are written within bracket, then we do not put multiplication sign. Then either p equal to 0 or q equal to 0, or both p and q are equal to 0. तो यानी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लें और उसके दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ जाए और वो ज़ीरो के इक्वल हो, तो फिर हम उसके हर फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल पुट करके उसमें से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. Now this is question number 3. In this question you are asked to solve the following equations. पिछले लेसन में हमने जो इक्वेशन सॉल्व की थी वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड फैक्टर फॉर्म में लिखी हुई थी. यानी लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टर फॉर्म में है, राइट साइड पे ज़ीरो है, तो हमने डायरेक्टली उस पर ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके एक्स या जो भी वेरिएबल है उसमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी. अब इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट टाइप का है. देखिए दिस इज एन इक्वेशन और इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है दैट इज ए स्क्वायर प्लस 9a. So this is not written in factor form. This is a quadratic equation or this is an expression, and we will factorize this expression to solve this equation. We have studied different types of expressions for factorization. These are the 6 types of expression. Whenever we are asked to factorize, we will always apply the first type. First type is an expression in which there is something common in all the terms. All the terms mean there may be 2 terms, there may be 3 terms, there may be 4 terms or whatever. तो इसको हमने देखना है क्या ये फर्स्ट टाइप का एक्सप्रेशन है
अगर ये फर्स्ट टाइप का एक्सप्रेशन है तो फिर हमने पहले उस पर ये वाली टाइप अप्लाई कर देनी है। तो यस देयर आर टू टर्म्स एंड ईच टर्म हैज ए कॉमन, तो ये वाली टर्म टाइप हम अप्लाई कर देंगे। ए विद इन ब्रैकेट वी विल बी लेफ्ट विद ए प्लस 9। अब हमने ये देखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो बाकी जो टाइप्स दी उनमें से तो किसी का नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये इसमें से कुछ कॉमन नहीं है और वो उस टाइप का एक्सप्रेशन नहीं है। तो इस इक्वेशन को हमने फैक्टर फॉर्म में लिख लिया। देयर आर टू फैक्टर्स a and a plus 9, so we will apply zero product property here, that is p multiplied by q is equal to 0। दो फैक्टर्स हैं, एक आपका a और एक a plus 9 इक्वल टू 0 है। तो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है या p 0 हो जाएगा या q 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 0 और a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दीज आर द सॉल्यूशन। देखें ये वो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे तो इस इक्वेशन की दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। देखो a को 0 पुट करो, इसमें 0 का स्क्वायर 0 प्लस 9 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 0 इज इक्वल टू 0। माइनस 9 इधर पुट करोगे तो माइनस 9 का स्क्वायर 81 मल्टी प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज माइनस 81। ये प्लस 81 ये माइनस 81, तो प्लस 81 और माइनस 81 कैंसिल होके अगेन आपके पास 0 आ जाएगा। C part of this question. Again there is an expression. We will see whether this expression is of first type or any other type of these types. Now 5C is common from the number, highest number is 5 which divides 5 and 25, and C is also common in both the terms. So we will bring this 5C common, and now we will apply zero product property। we will put 5c equal to 0 और 5c plus 5 equal to 0। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है 5c और c plus 5 को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 कब आएगा? जब या तो 5c इक्वल टू 0 हो जाए या c plus 5 इक्वल टू 0 हो जाए। 5 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता ना, 5 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो 5 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। c कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए 5c इक्वल टू 0 हो जाए या c plus 5 इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c की टू वैल्यूज आ जाएंगी, c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -5। सो दीज आर द सॉल्यूशंस, रूट्स और जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो वैल्यूज होती हैं, जो सॉल्यूशंस आती हैं, इन वैल्यूज को अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो तो इसकी दोनों साइडें लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे नंबर जो है वो सेम आ जाएगा। बिकॉज इसकी राइट हैंड साइड पे 0 है, तो जब आप c की वैल्यू 0 या c की वैल्यू -5 इसमें पुट करके सॉल्व करोगे तो भी इसका आंसर 0 ही आएगा। E part is this. Again this is an expression on the left hand side in which there is something common, and that common is 3f। we will take this common, 3f is equal to 1 minus 27f। we will put each factor equal to 0 by applying zero product property। 3f is equal to 0 or 1 minus 27f is equal to 0। From here f is equal to 0 or -27 f is equal to -1। 1 को जब आप उधर राइट साइड पे ट्रांसफर करोगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो सकता है और f जो है वो दैट विल बी इक्वल टू 1 over 27। so these are the roots, solutions or zeros of this equation। now this is the equation, -4 h square -16 h is equal to 0। देखें इसमें हर सेकंड थर्ड फोर्थ टाइप में तीन तीन टर्म्स हैं, जबकि ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनमें दो दो टर्म्स आ रही हैं। दो टर्म्स वाला एक्सप्रेशन सिर्फ ये है, लेकिन इसके दरमियान में माइनस साइन होना चाहिए और दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन तो नहीं है। फर्स्ट टाइप अप्लाई करेंगे, अगर कुछ कॉमन है इन दिस केस इट इज -4h, बाकी ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपके पास h plus 4 equal to 0। now we will put each factor equal to 0। -4h is equal to 0 or h plus 4 is equal to 0। so from here h is equal to 0 or h is equal to -4 is your required answer। now we will solve question number 4।
It's a part. Now in this question, look, there are three terms in this expression on the left hand side of this equation. This is an equation, k square plus 12k plus 36 is equal to 0. This equation is written in standard form. So we will solve this equation by factorization. तो factorization के लिए हमें ये left side पे जो expression है इसको factorize करना है. तो फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी टाइप का एक्सप्रेशन है ये. सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइप को चेक करना है कि क्या इसकी हर टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन तो नहीं है. Is there anything common in all the three terms? No, there is nothing common in all these three terms. So we will move forward. We will check whether this can be factorized by second type. Yes, we can factorize this by second type, and this can also be factorized by third type. Second type से ज़्यादा easy थर्ड टाइप होती है. अगर कोई एक्सप्रेशन सेकंड टाइप से भी सॉल्व हो सकता है, फैक्टराइज हो सकता है, और थर्ड टाइप से भी हो सकता है, तो बेहतर यह है कि आप थर्ड टाइप से उसको फैक्टराइज कर लें. अगर कोई एक्सप्रेशन थर्ड टाइप से नहीं होता और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तीन टर्म्स है, एक स्क्वायर वाली, एक और बाकी जो है विदाउट स्क्वायर, तो फिर आप उसको सेकंड टाइप से ही कर सकेंगे. लेकिन ये एक्सप्रेशन सेकंड टाइप से भी होता है और थर्ड टाइप से भी होता है, तो मैं यहाँ पे थर्ड टाइप को यूज़ करूँगा. थर्ड टाइप क्या होती है, उसमें दो टर्म ऐसी होती हैं जिसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं और एक उसका डबल प्रोडक्ट होता है दोनों का. तो इसमें के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं के का स्क्वायर और 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर. सो राइटिंग के स्क्वायर एज अ होल स्क्वायर इज के स्क्वायर, देन प्लस 2, यहाँ पे जो कि प्लस साइन है वी विल राइट प्लस 2 into a into b. We will leave two empty brackets and then we will write the third term plus 36 as a whole square, which is the square of 6. Now in the first bracket we will put the term under square, and in the second bracket we will put term under the second square. So here we will put k and here we will put 6 like this. Now this is an identity, a square plus 2ab plus b square, and this is the expansion of a plus b whole square. यानी पहले स्क्वायर के नीचे जो भी टर्म है क्या है, इस केस में a, सेकंड स्क्वायर के नीचे कौन सी टर्म है b. इन दोनों टर्म्स को लिख के इन दोनों के दरमियान हमने जो साइन लगाना है वो वाला साइन है जो 2 के साथ है. So in this case term under first square is k, term under second square is 6. We will write k and 6, and between them we will put the sign of 2, which is positive, and we will take the square of whole. Now we need to find the value of k. To solve this equation mean we will find the value of k, but k is under this square. जब तक ये square यहाँ से खत्म नहीं होता we cannot find the value of k. अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टू रिमूव दिस स्क्वायर वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ k प्लस 6 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0. अब आपको पता है ये स्क्वायर रूट इस पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 1. तो k प्लस 6 स्क्वायर जो है वो k प्लस 6 के इक्वल हो जाएगा अगर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, और 0 का स्क्वायर रूट जो है वो 0 ही होता है. तो नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम हेयर. k इज इक्वल टू -6 आंसर आ जाएगा. अगर आप इस मेथड से करोगे, सेकंड मेथड से करोगे, तो आपके पास k की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों ही -6 के इक्वल होंगी. k इज इक्वल टू -6 एंड k इज इक्वल टू -6, तो सेम आंसर जो है इसमें आएगा. सो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस टाइप. When its right hand side is 0 and on the left hand side there is an expression of any one of these types. This equation can be solved by second type and third type. सेकंड टाइप से आप करोगे तो 25 को 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर आएगा और उसके फैक्टर्स ढूंढना फिर मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए चूंकि 25 पी स्क्वायर को भी हम एज अ होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 49 को भी एज अ होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो और सेंटर में 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका जिसका स्क्वायर है और ये जिसका स्क्वायर है. तो 25 पी स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 5p plus 2 empty brackets plus 49 is the square of 7. In the first bracket we will write 5p and in the second bracket we will write 7, and we will get this.
Now we are able to write this expression in the form of an identity, which is a square plus 2ab plus b square, this one. And this is the expansion of a plus b whole square. Now here a is 5p and b is 7. So we will write 5p and 7, and between these two terms we will put the sign of 2 and we will take the square of whole. ये बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया था, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये वाला स्टेप मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, आप इसको करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5p प्लस 7 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5p प्लस 7 आ जाएगा, और जीरो का स्क्वायर रूट जो है वो जीरो ही होता है। तो यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले 7 को राइट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, वी विल गेट 5p इज इक्वल टू -7 and p is equal to -7 over 5, because this fraction is improper fraction. So always write improper fraction in the form of a mixed number like this. 7 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 and 2/5 आएगा, और ये नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाएगा। Now C पार्ट इज n स्क्वायर माइनस 16 जीरो। राइट साइड पे जीरो है और लेफ्ट साइड पे एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स हैं, दोनों के दरमियान माइनस साइन है और दोनों को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या इसमें फर्स्ट टाइप अप्लाई होती है? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर फर्स्ट टाइप अप्लाई नहीं होती तो कौन सी टाइप होगी? सेकंड टाइप? नो, because in second type there are three terms while this expression has two terms. Third type? No. Fourth type? No. Fifth type? Yes. Fifth type has two terms. In this expression there are two terms. Between these two terms there is negative sign. Both the terms can be written as a whole square. So n square can be written as the square of n. 16 can be written as square of 4. So n square minus 4 square is equal to 0. Now the factors of a square minus b square is a minus b into a plus b, यानी दो स्क्वायर के नीचे जो टर्म्स हैं उनको एक दफ़े माइनस कर दें और एक दफ़े प्लस कर दें। सो वी विल सब्ट्रैक्ट n and 4 and we will add n and 4 and we will get n minus 4 into n plus 4 equal to 0। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपने किया था कल इसी एक्सरसाइज का कि उस ये इक्वेशन फैक्टर फॉर्म में आ गई। किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा उसको पहले फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। फैक्टर फॉर्म में जब लिख देंगे तो वहाँ पे फिर ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है कि ये वाला फैक्टर ज़ीरो के इक्वल होगा या ये वाला फैक्टर ज़ीरो के इक्वल होगा। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट n इज इक्वल टू 4 एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट n इज इक्वल टू -4। सो जिस टाइप का एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे अगर ज़ीरो है तो आपने उस टाइप से लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करके जब वो फैक्टर फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन तो यू विल अप्लाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज एफ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लुक, we will always start from the first type. If there is something common, take that common out. 4r square minus 100. Is there something common in these two terms? Yes. What is that? It is 4. 4 is the number which divides 4 and 100 at the same time. Now 4 we will be left with r square minus 25. अब देखें इसके ये दो फैक्टर्स बन गए अभी तक कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं हुई। एक 4 है और एक r स्क्वायर माइनस 25 है। इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे बाय यूजिंग फिफ्थ टाइप। लेकिन उससे पहले 4, आपको पता है कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा अगर उनमें से 4 जीरो हो जाए या r स्क्वायर माइनस 25 जीरो हो जाए, बट 4 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये कांस्टेंट है ना, 4 जीरो के इक्वल तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जीरो को इस तरफ ले जाए और इधर ले जाके डिवाइड कर दे। तो इधर क्या रह जाएगा, आप जब दोनों तरफ 4 पे डिवाइड करेंगे तो r स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 4 और 0 डिवाइडेड बाई 4। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट r स्क्वायर माइनस 25। इधर 4 पे डिवाइड किया तो r स्क्वायर आ गया।
-25, आर स्केयर -25 आ गया, 0 को 4 पे डिवाइड किया तो 0 आ गया। अब ये वाली जो साइड है, लेफ्ट साइड, ये एक्सप्रेशन है फिफ्थ टाइप का, तो हम उसे उसी तरह फैक्टराइज कर लेंगे। वी विल राइट r square as a whole square. We will write 25 as a whole square also, which is the square of 5. Now a square minus b square, using this identity, we will write this as r minus 5 into r plus 5 equal to 0. And from here we will apply the zero product property. We will put this factor equal to 0 and we will put this factor equal to 0. R minus 5 equal to 0 or r plus 5 equal to 0, and from here we get r is equal to 5 or r is equal to minus 5. So these are the methods of solving the quadratic equation. तो quadratic equation में इनमें से कोई सा भी आपको expression दिया हुआ हो सकता है। सबसे पहले आपने ये वाले टाइप अप्लाई करनी है कि उसमें हर टर्म में कुछ कॉमन है तो उसको कॉमन निकालना है। फिर ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें हमने देखना है कि ये वाला इस टाइप या इस टाइप का एक्सप्रेशन है। जैसे कि इसमें हमने देखा पहले फर्स्ट टाइप अप्लाई हुई, ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो इस टाइप का है, तो इसको हमने फर्दर फैक्टराइज कर लिया और फिर जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली वेरिएबल की। सो दिस इज योर टूडेज लेसन। Today's homework is question number 3, it's B and D part. Question number 4, it's B and E part. Okay. So this is my profile, the mathematics teacher Zahid Hussain. You can subscribe this channel और इसकी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी ये लेसन अपलोड हो फौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन सेंड मी योर प्रॉब्लम्स ऑन दिस नंबर। Keep doing practice because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching and Allah Hafiz.